Yeah. So hello everyone. Basically, today we have a Jay Chawda. As you know, like Jay secured AR2 in GATE 2021, and then he joined Bark. Okay, and today he also selected in ONGC production part. Okay, so definitely his experience will help you a lot. Okay, and you can ask your query one by one. Okay, like whatever difficulty you are facing related to interview preparation. Okay, and definitely Jay will try to answer it. Okay, yeah. So guys, you can continue it. You can directly unmute yourself and ask your query. Okay. Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening. सर जी सर मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन था सर। सर जैसे मैंने लास्ट टाइम DRG का इंटरव्यू किया था, तो मेरा स्ट्रेंथ मटेरियल में मुझसे एक ब्लेंडर हो गया था थोड़ा। उसमें मतलब मैंने उनको कॉन्सेप्ट तो सही बताया था उसका, वो इस बात से एग्री भी थे। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात चली, मैंने उसका आंसर गलत बता दिया। जो मतलब एक बड़ी बेसिक चीज थी। जस्ट लाइक उन्होंने ये पूछा था कि अगर आपका एक रोम्बस टाइप है, मतलब आपने एक रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर बीम को 45 पर रोटेट किया है, और आपने एक को सिंपल रहने दिया है, तो इसमें से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मैंने उनको सेक्शन मॉडुलस के थ्रू बताया था कि जो हमारा स्क्वायर वाला है, जो 90 डिग्री पर है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा आप एक बार चेक कीजिए, तो मैंने उन्हें 45 वाला आंसर बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वहाँ स्टॉप हो गया। तो मैं जानना चाह रहा था कि अगर हम अप्रोच सही बताएं और आंसर गलत करें, तो इससे कितना इम्पेक्ट पड़ता है हमारी मतलब नॉलेज पर, कि जो सामने इंटरव्यूअर है वो क्या सोचेंगे। देखो, मतलब आप वो कंसेप्ट ही देखते हैं, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन को, किसी के क्वेश्चन को। उनका मेन काम है आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो आप आंसर बता दोगे तो पूछेंगे कि आपने कैसे लाया आंसर। तो अगर आप सही से एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, तो फिर वो सेटिस्फाई होंगे आपके आंसर से। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Next. आई हैव हाँ, बोलो। नहीं सर, मेरे पास और भी क्वेरी है, लेकिन मैं और जो कैंडिडेट हैं उनको भी मौका देना चाहता हूँ। नहीं, जो मेरी वीडियो स्टूडेंट्स खाली। अगर मान लीजिए म्यूट नहीं करके पूछना चाह रहे हैं तो वो चैट में भी पूछ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम आप अपने आप को जैसे ही कोई एक स्टूडेंट की क्यूरी कंप्लीट होती है, आप अनम्यूट करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। Ankit, you have any query? So, Hello, Jay, sir. yeah, Sai, continue. हाँ, Yes, sir. Actually, I have a query regarding the medical procedure. Like I have read somewhere that BARC also allows some partially colorblind students. Actually, I have yeah. really a lot of query with this. Could you please clear about this thing? Will they very strict on this, or will they allow? No. There are many students who have a partial color blindness, and they are allowed. Maybe So, in after the training, uh, maybe if some department is there where color blindness is not allowed, then there might be a problem. But as of training, there is no problem, and it is allowed. Partial blindness is mostly allowed, and there are okay, sir. students Thank here you. also with the partial blindness. Yes, sir. Thank you so much. Okay. Next. What were the sources you use for preparation, like and your Okay. strategy for BARC interview? Okay. I used to watch NPTEL lectures. Uh, जो core subjects थे, for core subjects like thermodynamics, for fluid, for difficult concepts and all, I used to watch NPTEL lectures. Some lectures, not all of them. So I will suggest first you go through the notes. If you are getting, first try to understand concepts from notes. Now don't go for formula mugging and all. Just focus on concept. They will not ask any formulas to you.
they will only focus on the graphs, only graphs, like stress graph, pressure variation through nozzle, temperature, PV diagrams. So mainly graphs and diagrams they will focus more. And basic concept, to get the overall idea of the interview, first go through all of the previous year questions, because mostly now they are repeating the questions, previous year questions. So if you go through all the previous year questions, then it will be good. All of the find all of the questions from Telegram, from Quora, from YouTube, from wherever you can get. I also have some PDFs so I can share with you. And discuss among oneself, discuss among yourselves, groups. The group discussion means in WhatsApp and all. Brainstorming will definitely help. We try to find more variations of the questions, that how interviewer can ask the question differently. So that's how you can think very in different directions, and in interview it will help you a lot. हेलो सर, Yes. आई हैव वन मोर क्वेश्चन सर। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने उन्हें 4 सब्जेक्ट बताए थे, तो उन्होंने कहा कि हम मतलब 4 के अलावा और भी सब्जेक्ट से आपसे पूछेंगे, तो मैंने कहा ओके इट्स ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये था, फिलहाल उन्होंने मुझसे उन 4 सब्जेक्ट के अलावा पूछा नहीं था, लेकिन इस बार मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो मुझसे इन 4 सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट पूछते हैं, सपोज कीजिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दे आस्किंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर उसमें थोड़ा बहुत मैं नहीं बता पाता हूँ, तो उसको मतलब कैसा कैसा कंसीडर करते हैं कि मतलब जैसे कि एक वहाँ नहीं ऐसा नहीं है। आपको जो आपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बोले हैं उनके बारे में आपको सबसे अच्छे से आइडिया होना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। उसमें आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपको आप सोच सकते हैं कि मेरा शायद नहीं हो पाएगा इंटरव्यू में। सो जो आपने सब्जेक्ट्स बोले फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो उनको आपको सबसे पहले क्लियर रखना है, क्योंकि मेरे से पूछा था, मैंने 4 सब्जेक्ट ही बताए थे मैंने फेवरेट, फिर भी मेरे को प्रोडक्शन से पूछ लिए थे क्वेश्चंस, लेंथ मशीन से पूछ लिए थे क्वेश्चंस, तो मुझे बेसिक आइडिया था तो मैंने बोल दिया, और जो मुझे आइडिया नहीं था मैंने नहीं बोला था। तो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कोर सब्जेक्ट जो आपने लिखे हैं फेवरेट सब्जेक्ट उससे भी पूछेंगे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ लेंगे। जैसे कि मेरे को सिलेंडर अपना होता है सर्कुलर होता है सिलेंडर, उन्होंने स्क्वायर सिलेंडर से मेरे को क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मतलब ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब बताना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो गलतियां हो सकती है चलेगा उसमें, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है तो आप उसमें गलतियां कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। अच्छा सर, मैंने लास्ट ईयर ये भी देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे 6 सिलेंडर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब जैसे कि 6 सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 6 सिलेंडर क्वेश्चन, तो अब सर जैसे हम ज्यादा तो पढ़ते नहीं है 6 सिलेंडर, तो उसकी तैयारी हमें करनी। 6 सिलेंडर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। 6 सिलेंडर से क्वेश्चन आएंगे, 6 सिलेंडर से मेरे से भी क्वेश्चन आए थे। 6 सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी बुक रेफर कर लीजिए 6 सिलेंडर्स के लिए। थियरीज ऑफ फेलियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फटीग के भी आप पढ़ लो, fatigue loading and theories of failure, 6 cylinders. Then beam questions, cantilever and all, shear force, bending moment. These are very important topics, so ये तो आपको फोकस रखना ही है। फ्लूइड भी इम्पोर्टेंट है, फ्लूइड से मोस्टली वही पूछते हैं, ओरिफिश या फिर नोजल, टैंक क्वेश्चंस मोस्टली वही आ रहे हैं, तो उनको आप पूरी रिसर्च कर लेंगे तो आप नए क्वेश्चंस भी हैंडल कर पाएंगे। Next. Yeah, continue, Raymond. Sir, if they ask me to write the 6 subject, तो उसमें मुझे 6 सब्जेक्ट कौन सा लिखना चाहिए सर? मशीन डिजाइन लिखना बेटर होगा या पावर प्लांट और आरएसी? मतलब सर अगर हम मशीन डिजाइन की बात करें तो मतलब किसमें एडिशनल हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होगा, किसमें मशीन डिजाइन या पावर प्लांट और आरएसी? आरएसी और पावर प्लांट हमने बहुत ही छोटा सा पढ़ा है, पावर प्लांट बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप पीएससी वगैरह के लिए पढ़े होंगे तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा पावर प्लांट। तो अगर आपने
अच्छे से प्रिपेयर है उसके लिए तो आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं पावर प्लांट। बट अगर आपने आइडिया नहीं है कि बस आपने बीटेक में पढ़ा है पावर प्लांट वगैरह, तो वो इनफ नहीं है। तो उसमें आप मशीन डिज़ाइन आपने अच्छे से पढ़ा है बीटेक में, तो वो आप मशीन डिज़ाइन बोल सकते हैं मेरे ख्याल से। मैं भी मेरा मेरा टारगेट था कि मैं मशीन डिज़ाइन बोलूँगा अगर मुझे फिफ्थ सब्जेक्ट पूछा तो मैंने। मशीन डिज़ाइन अच्छे से कर लीजिए क्योंकि वो कोर सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। Sir, what are the important topics in machine design? What should I prepare? Theories of failures, fatigue loading, stress Okay. concentrations, that things. Sir, they सर ask एक सवाल about bearing. मीन्स सबका एक बार आइडिया ले लीजिए आप, एक बार तो पढ़ ही लीजिए कि ऐसा नहीं छोड़ना है सब कुछ। अभी 1 महीने का टाइम है तो प्रिपेयर कर सकते हैं आप अच्छे से। Okay, sir. Thank you. सर सवाल ये है मेरा कि आपसे जब उसने पूछा था कि एक बॉडी है जो कि 80 डिग्री में 800 डिग्री सी में है और उसके दोनों साइड में 50 डिग्री सी का एयर है, और उसने बताया था कि बायोट नंबर मोर देन 1 है, और तब बताना है हेजलर चार्ट को बिना यूज करे उसको कैसे करेंगे। हाँ, बिना यूज टेम्परेचर, करे नहीं हो सकता। मैंने भी बोला था कि हेजलर चार्ट यूज करना पड़ेगा उनको उसके लिए। हाँ वही मतलब बिना इस पर तो हो ही नहीं सकता, या नहीं फिर नहीं, मैंने एरर बोला फंक्शन था में हेजलर देख। चार्ट वगैरह हाँ यूज करना पड़ेगा। नहीं, मैंने भी मतलब वही बोला था उनको कि हेजलर चार्ट यूज करना पड़ेगा। बिना उसके अच्छा ट्रांजिएंट हीट कंडीशन ट्रांजिएंट के प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। हाँ Sir, to attend BARC हम्म। interview, if anyone working in PSU, we require to submit NOC, sir. Like, is it हाँ, एनओसी mandatory? रिक्वायर्ड तो है। हाँ सर। एनओसी रिक्वायर्ड तो है वैसे। उसमें भी लिखा ही होगा कहीं पे तो आपको कुछ लेटर वगैरह आया होगा उसमें। क्या है ओके सर। कुछ आता है क्या? अभी याद नहीं आ रहा मुझे। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो भेजा होगा आपको, कोई डॉक्यूमेंट तो आया होगा इंटरव्यू के लिए, तो उसमें लिखा अभी ही तक होगा। तो नहीं एनओसी आया चाहिए है होता है लेकिन। नॉर्मली। Sir, वो 12th को आएगा डॉक्यूमेंट। ओके, नहीं नहीं, एनओसी चाहिए होगा किसी भी पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जाना है इंटरव्यू के लिए तो। सर मेरा ये सवाल है कि बीआरसी क्या वो देता है, एकोमोडेशन देता है? अच्छा, हाँ, ट्रेनिंग में देगा, ट्रेनिंग में बिल्कुल देगा। मतलब इंटरव्यू में नहीं देगा एकोमोडेशन, आपको बाहर लेना पड़ेगा? इंटरव्यू में? अच्छा, इंटरव्यू में देंगे ना, बिल्कुल देंगे। मतलब आपको रहना पड़ेगा, 400 रुपये लेंगे एक दिन का बस, या एक दिन का हॉस्टल है वहाँ 400 पे। रुपये अच्छा अच्छा, वो तुझे जान। ठीक है और बैठे। क्या चल रहा है? किसी को और कोई क्यूरी है जो पूछना चाहते हैं, लाइक Yeah, I want to ask या how to prepare for other interviews along with BARC, like that of IOCL, बता ONGC. दो। इनका ये पूछना है कि लाइक अगर जैसे हम ONGC IOCL इनके भी इंटरव्यू आ रहे हैं, तो बार्क का इंटरव्यू और उनकी एक साथ कैसे थे, चांदो वाले में अलग अलग थे, सिमिलर थे या देखो, ये बता दो कि चांदो वाला है। जो पीएसयू के इंटरव्यू, जो आईओसीएल वगैरह के हैं, जो भी एनएमडीसी वगैरह के इंटरव्यूज हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, 10 मिनट के होते हैं, और मोस्टली फॉर्मल रहते हैं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऐसे रहते हैं मोस्टली। पर पूछेंगे, अच्छा खासा पूछेंगे आपसे, थोड़े टाइम में बहुत कुछ पूछ लेंगे। तो उस जो आप आईओसीएल की इंटरव्यू बात करें तो फिर वो ऑयल मीन्स ऑयल इंडस्ट्री वगैरह के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मीन्स इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, जैसे कि वाल्व वगैरह यूज होते हैं, हीट एक्सचेंजर यूज होता है, तो वहाँ थर्मल वाली एप्लीकेशन की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। और जैसे कि फ्यूल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे वो सब पूछेंगे, तो आपको उसके हिसाब से पढ़ना था कौन सा इंटरव्यू आप दे रहे हैं। बाकी उसमें एचआर क्वेश्चंस तो रहेंगे आईओसीएल में, तो वो तो आपको प्रिपेयर करना ही है। एचआर बिल्कुल ही सिंपल सा रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, नो कि आपको कहीं और से ऑफर आया है वगैरह, सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं। मेन है कि वहाँ पे आप जीडी वगैरह के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए ताकि कुछ बोल पाए। हेलो सर। हेलो हम्म, हेलो सर, यस। मेरा ये डाउट है कि मैंने कोचिंग से पढ़ाई करी है, मेडीजी से मोर स्पेसिफिकली, और ईएसी रिलेटेड तैयारी करी थी। तो मुझे ये पूछना है कि
1 महीना सफिशिएंट टाइम है क्या बार्क के लिए? क्योंकि मोस्टली तो मैंने न्यूमेरिकल हाँ ही सॉल्व करे हैं। नहीं, 1 महीना बहुत ही इनफ है, परफेक्ट टाइम 1 महीना, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, 1 महीने में पूरा हो जाता है, मतलब कंप्लीट क्योंकि प्रिपरेशन आप कर मैं सकते हैं। 4 सब्जेक्ट ही करने की सोच रहा हूँ, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड्स, स्टॉर्म और हीट हम्म, ट्रांसफर। बस हो आपको बाकी जाएगा। सब्जेक्ट का आइडिया होना चाहिए, 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर लीजिए। ठीक, थैंक यू। बाकी का सबका बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, कहीं से भी अगर पूछ लिया, आरएससी वगैरह से पूछ लिया, पावर प्लांट से पूछ लिया, आईसीएनसी से पूछ लिया, तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है उसमें, उसमें डीप में नहीं जाएंगे वो लोग। और उनको कोई भी उल्टा पुल्टा आंसर देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सारे बहुत ही अच्छे लेवल की नॉलेज होती है उनको, तो आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो आप अच्छे से जेन्युइन आंसर दीजिए, आप कोई ब्लफ मत कीजिए उनके सामने। सर आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन। सर जैसे मैं 2020 का पास आउट हूँ सर, तो सर मैंने अभी तक कहीं पर ज्वाइन नहीं किया है। अभी 2021 में मुझे एनटीपीसी से ज्वाइनिंग लेटर आया था, लेकिन वो मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं पैशनेट हूँ भारत के लिए बीआरसी में। तो अगर वैसे तो वो इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे लास्ट टाइम ये पूछा था आप क्या कर रहे हैं, अगर इस बार पूछे तो इसको डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं? क्योंकि सर वैसे तो मुझे भारत में देखो, जाना है, मैं पैशनेट इस परिस्थिति में एनटीपीसी ज्वाइन नहीं किया। वो लोग नहीं पूछते हैं सब कि आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, आप क्या कितने साल से क्या कर रहे थे, ज़्यादा वो जाते ही नहीं, वो आपको आपका नाम भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपका नाम उनको पता ही होगा। वो आपको इंट्रोडक्शन भी यस। नहीं मांगेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन बताओ, बस पूछ लेंगे आप कहाँ से हो, इनिशियल क्वेश्चन से वो पूछ लेंगे, तो खाना वाना सही हो गया, रहना वाना हो गया आपका, फिर डायरेक्ट टेक्निकल स्टार्ट करेंगे, टेक्निकल सेंड कर देंगे, और कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं पूछेंगे वो लोग। तो ज़्यादा सर टेंशन लेने की इनकेस जरूरत नहीं, पर आप हम्म, सर लास्ट ईयर मुझसे कुछ ऐसा पूछा था उन्होंने थोड़ा बहुत कि आप क्या कर रहे हैं, कि मतलब आपने कुछ ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो अगर इस साल पूछते हैं तो क्या हम्म। क्या करना चाहिए सर, हाँ मुझे मतलब बताया जाए। जॉइन मतलब क्या, जॉइन करना चाहते कि नहीं? नहीं सर, सर अगर उन्होंने पूछा कि एनटीपीसी आपने जॉइन क्यों नहीं किया? एनटीपीसी ज्वाइन नहीं किया। हाँ। एनटीपीसी जॉइन क्यों नहीं नहीं सर, किया? मुझे मुझे ये चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए नहीं कि मैं एनटीपीसी में सिलेक्ट हो गया था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। आ, फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि बोलने का भी सेंस भी नहीं है कि, क्योंकि उससे कोई फायदा भी नहीं होना, नुकसान भी नहीं होना, तो मेरे ख्याल से बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप बोलिए जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कि बोल के भी आप क्या ही करोगे कि एनटीपीसी में गया था फिर नहीं सिलेक्ट हुआ था, नहीं गया, तो उससे कुछ फायदा होने नहीं वाला, नहीं सर। बेकार में। सर मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका था सर, ज्वाइनिंग हो चुकी थी मेरी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था सर। हाँ, पर सिलेक्ट हो उससे कोई गया था फर्क मैं नहीं पड़ता एनटीपीसी वहाँ में। पे, ओके। ठीक। इससे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये एक बताएंगे स्टूडेंट का नहीं। क्वेश्चन है, बार्क इंटरव्यू हम्म, में जो फ्रेशर जा रहे हैं, लाइक आप भी फ्रेशर ही थे, फोर्थ ईयर के साथ में ही थे, हम्म, तो कॉलेज प्रोजेक्ट इंटर्नशिप इन सब पे भी कोई क्वेश्चन आता है या हम्म। नहीं आता है बार्क में? जितने भी मेरे साथ थे मोस्टली, किसी से भी मैंने तो कभी नहीं सुना कि बीआरसी में प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे उन्होंने। अगर आप ऐसा है कि आपका शायद कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं अगर क्वेश्चंस के, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट वगैरह से पूछ ले, बट नहीं पूछते हो मोस्टली, पर आप बेसिक एक बार गो थ्रू कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट पे कि आपने क्या किया था, पर नहीं पूछेंगे, मोस्टली तो नहीं पूछेंगे। और मैंने कभी सुना नहीं कि बीआरसी प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे उन्होंने। एनी अदर क्यूरी? Hello, sir. सर Actually, like, हम्म। actually, I was about to ask the whether we have to read the textbooks for like answering those application questions that BARC people ask us, and what kind of books we have to read, like which authors we have to follow for it. Uh, For example, BTD and SOM, and even heat transfer and fluid mechanics. This is what I have planned for reading. So, for that, you don't have to read the whole book or whole chapter. You only have to read the specific topics. So I think it is a good thing if you are reading the book, because it gives you more insight of the concept. So you can read the book.
it is good. Means it will help you. So for books, I guess for fluid, SKSOM book is good because it is in the context of or it is in Indian context, so it will help. And for that thermal part, Syngel and Pickenag is always best, and for heat transfer, Syngel is best. And for you can also go through some NPTEL lectures. Only some parts. If you are bored with prepare readings, and you can in free time you can go through some lectures quick on 2x speed. So you might get some inside concepts which may help. So it is there is no harm in reading book now, because for GATE I will not suggest to read book in deep, but for concepts here you are supposed you can read. Thank you, sir. सर अगर हम जितने भी प्रीवियस ईयर बार के क्वेश्चन हैं अगर हम उन सबको प्रिपेयर कर लें तो सर इज देयर एनी चांस फॉर द सिलेक्शन? अच्छे से प्रिपेयर कर लें सब सभी क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने से नहीं होगा, आपको सारे क्वेश्चंस तो करने हैं, पर उनके वेरिएशंस भी आपको उनके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी सारे करना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस है वो तो करनी है, पर उनके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, उनके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जो भी क्वेश्चंस के वेरिएशन है वो भी आपको सोच के करना पड़ेगा। ग्रुप में आपको डिस्कस करना सही रहेगा आपको। कोई डाउट है आपको तो ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, तो आपको नए नए आइडियाज मिलते रहेंगे। My query, like you said, that they are mostly oriented towards that the graph part and also how to prepare for that, means specifically the graph parts and like the variation of HV time and all. You will get better at it by practicing only. So you try to plot pressure variation graph for nozzle. You try to plot PV diagram for different piston cylinder arrangement. That if the piston cylinder is upside down, then it is expanding by self weight of the piston. So you try to use your concept and try to draw the PV diagrams and all. So by practicing only you will get better at it. Yeah, that's all. That is the thing. You only have to practice for that. For graphs, practice is main. Thank you. Also, go through some stress diagrams and all from book. If it is given in the book, then you can go through them. For stress concentration, how the graph is varying, how stress concentration factor is varying with different factors. So these things, it may help if you just keep it in your mind. It might appear in the interview as a question. Any other query? तो सर ये बार के सवाल कहाँ से मिलेंगे पिछले साल के, पिछले इंटरव्यू? टेलीग्राम, कोरा, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बनाए हुए हैं पहले से। मैं भी आपको शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे आपको कहीं से खुद से ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे। कोरा पे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। टेलीग्राम पे भी कोई ग्रुप्स होते हैं डाउट वाले, तो उसमें लोग डाल देते हैं पीडीएफ बना के। यूट्यूब पे तो एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं लोग अपना, कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे थे उनसे, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये कि आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा उन क्वेश्चंस का, आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे आंसर्स। तो सर उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, मेरा आंसर सही है या फिर गलत है ग्रुप में? वो आपके वही तो है आपका, कि आप अपने कंसेप्ट से कितना कॉन्फिडेंट होगा आपका आंसर सही है कि नहीं। वो आप मतलब डिफरेंट ओपिनियन ले सकते हैं लोगों के, टीचर से पूछ सकते हैं, अपने मेंटर से पूछ सकते हैं, या फिर अपने ग्रुप से कोई मतलब ग्रुप में ही आप डिस्कस कीजिए अपने आप में ही दूसरे बच्चों के साथ, तो आपको पता लगेगा सही है कि नहीं।
मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको आंसर पता ही नहीं होगा, इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सर इसको वो ग्राफ क्वेश्चन जो आप आपके पास है, अच्छा कोई भी ग्राफ बनाओ आपकी, जैसे कि हाइट, टैंक की हाइट वगैरह कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, तो आपको मतलब दिखाना है कि वो कैसे आया है इक्वेशन। आप ऐसे ही कोई हवा में ग्राफ बना देंगे तो वो नहीं चलेगा। तो मतलब वो भी आपको देखने की इक्वेशन बनानी है आपको, वो प्रैक्टिस कीजिए आप इक्वेशन बनाने की। हो सकता है कि आपने ग्राफ बना लिया ऐसे ही और उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, ये भी हो सकता है क्या कि आपने पूछे नहीं वो लोग कि कैसे बना लिया आपने ग्राफ। लेकिन अगर पूछ लिया ऐसा तो आप बता सकते हैं कि ऐसे इक्वेशन से आपने बनाया है ये। तो अब वो इक्वेशन जो बन रही है आपकी, सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उससे आप बता सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। सर ये इंटरव्यू का क्वेश्चन जो आपके पास है वो शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ मैं कर दूंगा सर, मैं कुलदीप सर के साथ शेयर कर दूंगा और कुछ है नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। या सो जे फाइनली लाइक आप लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स देना चाहो जो इस सबके लिए यूजफुल हो सकते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मतलब देखो लाइक ड्रेस कोड ऐसा क्या है होना कि चाहिए, कई स्टूडेंट का ये भी क्यूरी आता है ड्रेस कोड से रिलेटेड और बाकी सारी जैसे। ड्रेस कोड, हाँ लोग बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, पर आप नॉर्मली शर्ट पैंट पहन के जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, टाई वाई पहनने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मल शर्ट और पैंट पहन के जाओ। कोई जीन्स वीन्स पहन के मत जाना ज़्यादा, मतलब हीरो गिरी करने के लिए कि चले गए कूल बनने के लिए। तो नॉर्मल शर्ट पहनो, फॉर्मल वगैरह पहन लो। फिर ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है कि कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी आया है, शॉर्ट स्लॉट बुकिंग में किसी का बहुत पीछे आया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूँ ये 1 महीना आप अपने जो कंसेप्ट आपने पहले से बना के रखे हैं उनको आप रिवाइज कर रहे हैं बस। जो आपके कंसेप्ट बनने थे वो आपके बन चुके हैं, अभी आप उनको बस ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, फिर से समझ रहे, रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपने प्रिपरेशन है, जो भी 1-2 साल से आप कर रहे हैं, वही आपकी काम आएगी अभी। अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा पहले है बाद में, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड बिल्कुल शांत दिमाग के साथ जाओ। ज़्यादा ज़्यादा एक दिन पहले पढ़ने की कोशिश मत करो, ज़्यादा दिमाग में कुछ घुसाने की कोशिश मत करो। लोगों से ये मत पूछो क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछे, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे। बस शांति से जाओ, एक दिन पहले रूम बुक कर लो, आराम करो और दूसरे दिन चले जाओ सुबह। ओके, सो आई होप सो मैक्सिमम स्टूडेंट की क्यूरी रिजॉल्व हो गई होगी। ओके सर सर मेरा क्वेश्चन आपसे और जे सर से था। सर आप हमारे लिए कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं सर? देखो मॉक इंटरव्यू में भी अगर हम क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे तो मोस्टली वही क्वेश्चन होंगे जो मेरे प्रीवियस से या पूछ जे सकते हैं। उसके हिसाब से लाइक जो इनका एक ओएनजीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो उसमें एक स्टूडेंट लाइक क्यूरी डालता है, फिर बाकी स्टूडेंट उस पे आप भी अपने व्यू दिया कीजिए उस क्वेश्चन पे। तो आई थिंक वही मॉक इंटरव्यू की तरह ही वर्क करेगा। जैसे कभी कोई क्वेश्चन डालता है तो आप अपने व्यू डाल दीजिए उसके ऊपर। इसमें आपको आपकी पर्सनैलिटी पे वो जरा भी जज नहीं करने वाले। आप कैसे बोलते हो, आप कैसे दिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी इंग्लिश खराब है, आप हिंदी में बोल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप उसकी टेंशन में बिल्कुल मत लीजिए। बस आपको बस कंसेप्ट, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपको कंसेप्ट बताना है, उनको क्वेश्चन समझा देना है, आंसर समझा देना है उसका। बस इतना ही करना है उसमें, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसमें। हेलो सर। पर्सनैलिटी वगैरह पे। ओके सर यस या अंकित सर एक्सरजी हेलो सर एक्सरजी आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। यू हैव एनी क्यूरी? Jay sir, if you can share your like how is your day going with BAG? Yeah, currently you are in training school, sir.
In training school, only it is like we are doing MTech, but not as hectic as in IITs. You just have to attend classes, give exams every week. And it is not very hectic. I'm not feeling any very hectic schedule. There is no any much hectic schedule, so it is life is easy in training. Host is muting me. You have to attend classes every day, and on one day are exams, so you have to prepare for that. Yeah. So basically, I hope so. This session is helpful for you. Okay. If you have any other query you are not able to ask during the session, you can text through the like. You can text through the me, and I will deliver to the Jay, and he is able to provide the feedback and answer whenever he got time. Okay. And definitely best of luck from my side, and I hope so many of you are able to clear it. Okay. And whatever Jay provided his experience, I hope so it's helpful for you. Thank you, sir. Thank you. Okay. All the best. Thank you, sir. Good night. Thank you. Good night.